Yeah, okay, let's go. ठीक है. So firstly, I would just like to welcome you all and congratulate all of you for making it in this year's prelims, probably the toughest prelims that was ever the UPSC has conducted. But अब जब आप लोगों का हो गया है and you have made it through, firstly, stop enjoying your success now because the real test remains. 14,000 of us are going to write the mains, and no matter how much hard work we do, only 3,000 will come and give the interview. और अब आप सारे लोग वो हैं जो मेंस लिख रहे हैं, तो आपसे कोई बचकानी बातें नहीं होंगी, आपसे कोई you will not be given any sort of remit or relapse. आपसे बिल्कुल straight up जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर today every single day that you spend or every single minute that you spend might be worth 1 mark, and that 1 mark is enough to shift you maybe 20 ranks, maybe 50 ranks, maybe put you out of the list into the list. और ऐसे आपके पास अभी अप्रोक्सीमेटली 90 डेज हैं, मे बी 88 डेज हैं, तो 90 मार्क्स में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी गेम चेंज हो सकती है. सो एवरी डे वन सिंगल अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड वन लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट कैन चेंज योर डेस्टिनी कंप्लीटली. तो इस ओरिएंटेशन सेशन का यही पॉइंट है, दैट वी जस्ट टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारा क्या प्लान है आपके लिए, व्हाट वी आर ऑल गोइंग टू डू, what resources we are going to help you with. All of that we will discuss in this session. At the end of this session, if you have any questions, we'll take them. Right? हमने कल बैठ के we have made a plan for this. Satyam sir is here, Rishabh sir is here, and we've all sat down together yesterday and made a plan for this. तो मैं शुरू में बस introduce कर देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, and then I will ask Satyam sir to continue from there. So, firstly, जो आपका अगले टाइम का प्लान है, वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू 3 phases. ओके, मोस्टली जो हमने गूगल फॉर्म में देखा, मोस्ट ऑफ यू आर दोस्त हु आर राइटिंग देयर फर्स्ट मीन्स. अब जब ऐसा मीन्स हुआ है जहां पे ऐसा प्रीलिम्स हुआ है, सॉरी, जहां पे मोस्ट अ लॉट ऑफ वेरी गुड पीपल हैव फेल्ड, जो बहुत डिजर्विंग लोग हैं वो फेल हुए हैं, तो यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. बट दैट ऑल्सो मीन्स दैट इट्स गोइंग टू बी इजी बिकॉज देर आर गुड कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलिमिनेटेड. तो इसके लिए you need to be very alert for the next 3 months. So the 3 phases are such that जो phase 1 है उसमें you are meant to complete your general reading. You are supposed to collect and read from whatever materials you have to. You are also supposed to write previous year questions daily. And ये कैसे आप करोगे ये अभी हम आपको बताते हैं, मैं बस आउटलाइन दे रहा हूँ, फिर सत्यम सर बताएंगे. Then you have the second phase. The second phase is when you have already finished most of the reading things. This is only the revision plus writing phase where you will revise and then you will write tests. So some time for this. And finally, the third phase of your mains prep where you will do nothing but just give simulation tests. You will simulate the mains environment. जैसे एक दिन में there are 2 papers in the mains. So let's say अगर 5 days की simulation है, you will give essay, then GS1, then 2, then 3, then 4, then language paper, then optional in 5 days. ये simulation आपने करनी है and you have no idea आपको इससे कितना फायदा होगा in the actual mains paper. So these are the 3 phases. And मैं आपको बस I'll just upload this document और सारे documents आपको कैसे मिलेंगे वो बता के I'll go to Satyam sir. So अभी क्या है, the first phase will last approximately 51 days. इसमें we are starting from 21st which is Wednesday. ठीक है, ये कैलेंडर will be shared to you. कैसे शेयर होगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ. ठीक है, we'll start from 21st. आज today is the 19th. आज का दिन तो हो गया है ऑलमोस्ट, कल का दिन हमने आपको खाली दिया है. You should start from tomorrow, but हम 21st से कर रहे हैं अपने प्लान में. We have given you 15 days for GS1, 12 days then for GS4. Then moving on, you have 12 days for GS2 and then again 12 days for GS3. 5 days हमने रखे हैं essays के लिए, but this is not how it will be structured. ये essay वाले दिन आपके इन days के बीच में आने हैं जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा. So ultimately the first phase will end on the 15th of August. And in the first phase we expect कि आप अपनी सारी material खत्म कर चुके हैं. You are done with your material. You are done with your PYQ writing. You are done with your reading. So nothing new effectively
will come in your preparation after 15th August. इसमें आप ऑप्शनल्स कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं. Then phase 2 is where you write tests and you learn. So you learn मतलब आप रटोगे. So phase 2 is you have 5 days for each subject. So 5 days for GS1, 5 days for GS2, 5 days for GS4, 5 days for GS3. Once that is done, you will end here, right? This will be, I think, 5th of September. Then 5 दिन का simulation. And lastly, जो last के दिन होते हैं उसमें मैं बताता हूँ क्या होता है. You will start from the 10th. तो इस दिन आप एक दिन में GS4 रिवाइज करोगे, यहाँ एक दिन में आप GS3 रिवाइज करोगे, एक दिन में GS2 रिवाइज करोगे, एक दिन में GS1 रिवाइज करोगे, एक दिन में अपने एसए के नोट्स रिवाइज करोगे, साथ में दोबारा GS4 रिवाइज करोगे. 15th को जाके एसए का पेपर देके आओगे, रात को वापस आओगे, GS1 GS2 रिवाइज करोगे. 16th को जाके आप फिर पेपर देके आओगे GS1 GS2 का, वापस आओगे, सिर्फ GS3 ही रिवाइज करोगे. 17th को जाओगे, GS3 का पेपर देके आओगे, रात को GS4 का पेपर होगा. बट सिंस यू जस्ट रिवाइज दैट ऑन थर्सडे, यू विल बी एबल टू डू इट. तो हमारा अल्टीमेट गोल है कि एक दिन में हमें पूरा GS याद होना चाहिए. जब तक वी डू नॉट रीच देयर, इट्स गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस. तो इस प्लान में दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, ये प्रिंटेबल कैलेंडर आपको मिल जाएगा, और जो रिसोर्सेज और जो शेयर होनी है, और आपने अपना ऑप्शनल कैसे हैंडल करना है, वो अभी सत्यम सर आपको बताएंगे. सर let's continue it together क्योंकि थोड़ी बातचीत टाइप ही रहेगी. You need me to share my screen या फिर like you can continue with the screen sharing, we can talk together. हाँ बिल्कुल सर. सर मैं करता हूँ, आप बोलिए. हाँ ओके डन. तो लाइक हेलो एवरीबॉडी, और अभी हम लाइक सीरियसनेस यहीं से स्टार्ट हो जाती है. आई डोंट वांट टू पॉइंट इट आउट बट ओनली 1/3 पीपल हैव जॉइंड. तो यू कैन सी यही है, लाइक दिस इज इट. मैं आपको बता रहा हूँ लाइक जस्ट बिफोर शेयरिंग द प्लान फर्दर, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कि इंसान ना गिव अप कर देता है. जब इंसान को लग रहा होता है ना कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है और हो जाता है, तो उसको लगता है प्री तो क्लियर हो गया अभी ना, ठीक है अब ना इस बार देख लेते हैं एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम, अगली बार मेंस के करेंगे बहुत अच्छे से. बट दैट नेक्स्ट टाइम इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है. और ये ना हकीकत है. यू विल सी बाय द एंड ऑफ 10th ऑफ सितंबर आधी जनता गिव अप कर चुकी होगी. लोगों के पेपर तक क्यों नहीं पूरे होते हैं, क्यों इतने यार. एक बात बताओ बहुत सिंपल सी, जस्ट टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल थिंग बिफोर आई बिगिन विद द प्लान. व्हाई इज इट दैट स्टिल टुडे everybody knows that paper has to be completed but still people are not completing the paper? Still there are कि आज भी लोग आके बाहर बोल रहे हैं कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है. Why is it so? Simple सा reason है, because at a certain point of time they didn't give enough efforts because they believed that they'll not be able to make it. That is the only thing. So now it all depends on whether you believe it or you don't. If you start believing and you start doing, बहुत आसानी से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा अगर आप मेहनत करनी शुरू कर दोगे इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लान. तो जैसे शिवन सर ने बताया ही कि वी विल स्टार्ट विद GS1. तो अभी क्या है कि हम आपको स्टार्टिंग में GS1 के सोर्सेज देंगे, हम आपको GS2 के सोर्सेज देंगे नहीं, प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको ऐसे एकदम ओवरलोड नहीं कर देना चाहते विद द सोर्सेज. लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, हर एक चीज का सोर्स आपके लिए सॉर्ट आउट करके रखा है. You do not have to hunt for sources. We have made a separate channel for this because of some like things. तो वहां पे आपको सेपरेट चैनल का लिंक दे दिया जाएगा. जस्ट गो देयर, यू विल गेट टू सी द रिसोर्सेज. सब कुछ वहां पे ऑलरेडी अलाइंड है. इसका लिंक हम आपको भी प्रोवाइड करा देंगे इन द ग्रुप. एंड देन जस्ट गो देयर, एक्सेस द रिसोर्सेज, प्लान के हिसाब से पढ़ो, प्लान के हिसाब से आंसर लिखो एंड यू विल सी इंप्रूवमेंट्स. इसके बीच में इफ यू स्टार्ट हंटिंग फॉर सोर्सेज एंड रिसोर्सेज तो फिर कुछ नहीं होने वाला है. बिकॉज from now on it is not just about reading, it is not just about reading, it is about cramming, it is about producing, it is about writing, it is about a lot of things. तो कम पढ़ो ज्यादा लिखो. ठीक है, बहुत सिंपल से ये कि फंडा याद रखना, जितनी कम इंफॉर्मेशन को जितनी ज्यादा जगह यूज कर सकते हो, जितनी एनालिटिकली यूज कर सकते हो, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. एक्टिवली रिकॉल करो कि ठीक है हाँ एक डेटा है, जैसे लास्ट ईयर एक डेटा था कि हाँ लॉजिस्टिक्स में इंडिया का क्या हिसाब चल रहा है, बहुत खराब है, तो उसको कितनी जगह यूज कर सकते हो. हाउ मेनी लाइक कहीं आपने पढ़ लिया, इकोनॉमी में पढ़ लिया ये, बट कैन यू यूज इट इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट? कैन यू यूज इट समवेयर इन GS2? दिस इज ऑल द इंटरलिंकिंग इज. तो ये आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. लेट्स टॉक अबाउट GS1 फॉर नाउ. GS1 विल स्टार्ट फ्रॉम, जैसे शिवन ने बताया, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 21st. एंड सबसे पहले from like 21st we'll start with
हाँ ओके 21st से मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विद हिस्ट्री. और उसमें लाइक यू विल बी गिवन 9 days टू कंप्लीट योर एंटायर हिस्ट्री का पोर्शन. राइट 9. जस्ट अ सेकंड. हाँ 8 and 7. हाँ ओके ठीक है. तो लाइक विल स्टार्ट विद हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री. तो मॉडर्न हिस्ट्री के आपके क्या सोर्सेज हैं? मॉडर्न हिस्ट्री के आपके वही सिंपल सोर्स है. द सोर्स इज स्पेक्ट्रम की समरी. बिकॉज उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स. जैसे इस साल भी वही क्वेश्चन आया था जो प्री 1800 का आ गया था. तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर थिंग्स एंड यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ पीवाईक्यूज. ठीक है. तो जस्ट उसको स्पेक्ट्रम को अपनी जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था या कुछ नोट्स बनाए थे या कुछ भी किया था, या फॉर दैट मैटर अगर आपने कोई और बुक भी पढ़ी थी, सपोज करिए समबडी हैज रेड बिपिन चंद्र और समथिंग, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैठ के पूरी 800 पेजेस की स्पेक्ट्रम तुम्हारे पढ़ो. प्लीज वी आर नॉट सेइंग दैट. वी आर जस्ट सेइंग जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए मटेरियल यूज किया था, just pick it up again, go through it and try to write as many answers as possible. क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि reading is one thing and writing is another thing. सर डेज का डिस्कशन सोर्सेज के बात करते हैं. एक बार सोर्सेज सारे बता के देन वील टॉक अबाउट द डेज. Cool. तो modern history, spectrum, then when we talk about like art and culture, medieval, ये सब चीजें, तो वही जो आपने prelims के लिए पढ़ा था, that's it, nothing more. उसी चीज को as it is continue करना है. साथ में of course PYQs, that goes without saying. Then for world history, I have already uploaded, हमने already upload कर दिया है. श्रेयस सर के नोट्स हैं. लाइक उन्होंने कुछ साल पहले पेपर निकाला था. ही हैड अ गुड रैंक. उनके नोट्स हैं. वैसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री से पिछले 2-3 सालों से कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. लेकिन स्टिल आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कुछ बेसिक से क्वेश्चन आ गया सिलेबस से डायरेक्टली, तो कहाँ से करना है. देन फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वी हैव अ विजन का डॉक्यूमेंट. विजन का वैम कह लो या डॉक्यूमेंट कह लो, या फिर ओनली आईएएस का एक डॉक्यूमेंट है, वो आप यूज कर सकते हैं. बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड. जस्ट वन. ठीक है. वो स्लैश को बस ध्यान से याद रखना. जस्ट वन. तो कोई भी एक करना है. तो विजन का डॉक्यूमेंट या ओनली आईएएस का डॉक्यूमेंट, वील अपलोड इट एंड you'll be able to access it. पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए सिर्फ उतना पढ़ना है. साथ साथ में पीवाईक्यूज लगाने हैं और कुछ आपको नए क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, वो लगाने हैं. दैट्स इट. दैट इज इनफ फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस. एक क्वेश्चन आता है, हैंडल हो जाएगा. देन वी कम टू ज्योग्राफी. ठीक है. ये हिस्ट्री के 4 पोर्शंस हो गए: मॉडर्न, वर्ल्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा. देन वी कम टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में एक तो सबसे पहले आपकी जो आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैंडल हो जाते हैं. ठीक है. तो ये मतलब डू नॉट फॉरगेट इट कि अपनी एनसीईआरटीज को आप रिवाइज कर लो. देन सेकंड थिंग जो यहाँ पे आ जाएगी, विच विल बी इंपॉर्टेंट टू फॉर स्पेसिफिक एरियाज, जैसे एक टॉपिक है आपने देखा होगा, रिसोर्सेज की लोकेशन एक्सेट्रा, इंडस्ट्रीज की लोकेशंस, ऐसी चीजों के लिए वी हैव पिक्ड अप प्रहार का एक डॉक्यूमेंट है. ओनली आईएएस का प्रहार डॉक्यूमेंट है. ऐसी कुछ चीजों के लिए इट विल बी लाइक जो नॉलेज का गैप रह जाता है थ्रू एनसीईआरटीज, वो ब्रिज हो जाएगा. तो ओनली आईएएस का प्रहार है, अगेन अपलोडेड ऑन द चैनल. यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट एंड रीड इट. उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये शिवन सर एक उसका अलग से सेशन लेंगे, आपको बताएंगे. बिकॉज यू डू नॉट हैव टू रीड इट एंटायरली. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल नॉट बी ऑफ गुड आरओआई. तो अभी के लिए उसको रुक जाना. लाइक वील स्टार्ट, वैसे भी वील स्टार्ट विद लाइक हिस्ट्री एंड सोसाइटी फर्स्ट. तब तक ज्योग्राफी का आपका सेशन हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे करना है. ठीक है. दिस मच इज इनफ अलोंग विद द पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स. देन विल कम टू जीएस 1 का लास्ट पोर्शन विच इज सोसाइटी. ठीक है. इसमें एक तो आपको लाइक नोट्स मिल जाएंगे. शिवन सर के जो नोट्स हैं उन्होंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, एंड वी हैव सेंट देम ऑन द अदर चैनल आल्सो, दैट द वन दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर रिसोर्सेज. एंड देन देयर इज विजन का वैम. अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है, बट अगेन इनमें से कोई एक ही आप रेफर करोगे, यू विल नॉट रेफर टू बोथ ऑफ देम. विजन का वैम आई विल जस्ट अपलोड इट. ठीक है. तो ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा एंड यू विल जस्ट डू एनी वन, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी मोर अबाउट हाउ यू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन दैट यू नो. ओके. कंटेंट क्यों पढ़ना है? ताकि आप दूसरों से एज ले सको, लेकिन अपने आप को बेस्ट कैसे डालना है ताकि उस कंटेंट को आप बेस्ट प्रोड्यूस कर सको. तो ऐसे करके दिस इज द लाइक GS1 का पूरा रिसोर्सेज का सेक्शन. इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है. प्लीज डू नॉट थिंक, प्लीज डू नॉट थिंक कि आप 10 सोर्सेज पढ़ के चले जाओगे. उससे कुछ नहीं होने वाला है. रीड लिमिटेड, राइट एज मच एज यू कैन, एंड डू नॉट फोकस ऑन राइटिंग टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पीवाईक्यूज लिखो. उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं, पीवाईक्यूज की थीम्स भी रिपीट होती है. पीवाईक्यूज से आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो कैसे अप्रोच करना है. एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन पीवाईक्यूज. तो प्लीज कम आउट ऑफ दिस एंटायर गिमिक. बाहर आओ, लिखो. विल बी प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चंस. आपको वो लिखने हैं एट अ सर्टेन लाइक डेट, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एंड विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस. राइट शिवन? तो सर यही प्लान है आगे चल के, दैट लेट्स से आप 21st को यू आर स्टार्टिंग विद मॉडर्न हिस्ट्री. तो अब
जो डेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. हिस्ट्री के लिए वी हैव गिवन यू 5 days, सोसाइटी के लिए वी हैव गिवन यू 5 days, and geography के लिए we have given you 5 days. So GS1 you have 15 days. Depending on whether you are good in some subject or bad in some subject, आप इसको ऊपर नीचे कर लेंगे. अब ये 5 दिन क्यों हैं? ये 5 दिन इसलिए हैं because 50% of your day every day will go to your optional. आज मैंने YouTube पे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए वीडियो बनाया है. अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, इवन देन आई वुड रेकमेंड कि आप देख लो, बिकॉज किसी भी ऑप्शनल में और या मोस्ट ऑप्शनल में 70% पेपर इज रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कहीं में ज्यादा कहीं में कम. सो अगर आप लेट्स से, मैं रेकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे यू शुड बी रीडिंग 12 आवर्स, स्टार्टिंग 12 आवर्स. इसको आप हाफ में स्प्लिट करिए, 6 आवर्स फॉर जीएस, 6 आवर्स फॉर ऑप्शनल. इन 6 आवर्स में भी एटलीस्ट 1.5 आवर्स यहाँ एंड 1.5 आवर्स यहाँ शुड गो इनटू राइटिंग. यू हैव टू राइट एंड यहाँ ऑल्सो यू हैव टू राइट. तो ये टाइम जो 5 दिन आपको मिला है, ये इसलिए है कि आप 5 दिन अपना ऑप्शनल पढ़ेंगे और 5 दिन आधा दिन. सो दिस इज इफेक्टिवली 2.5 days. Half of the day you spend in history, half of the day you spend in optional. And yes, you do have to study 2 subjects in a day, because नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, 12 घंटे आप पढ़ नहीं पाएंगे रोज. There needs to be variety to your day. So effectively you are studying for 4 hours for GS or 4.5 hours for GS, 4.5 hours for optional. Sorry, ये optional है. 4.5 hours for optional, and then you are taking the rest of the time in writing. तो 3 घंटे आप रोज लिख रहे हैं. And what are you writing? You are writing previous year questions. So अब let's say 21st से we start with modern history. तो modern history में क्या concept है? Modern history में मान लो आपने certain part of spectrum की summary आपने revise कर ली. अब आप लोग spectrum पढ़ के आए हैं या जो भी आप source पढ़ के आए हैं, आपको वो अच्छे से आता है. तो effectively spectrum should take not more than 1 day for you to revise modern history की. Like you just need to revise the summary and then you need to write some PYQs. तो आपको PYQs इस ग्रुप पे मिल जाएंगे. You have to write and upload here. देखो 1/3 लोग अभी आए हैं, जो लिखने वाले होंगे ना वो 1/10 होंगे जिन लोग आए हैं उसमें से, एंड यही वो 1/10 होंगे who will finally make it. ठीक है, मैं भी ऐसे एक ग्रुप में था लास्ट ईयर जहां ये PYQs लिखवाने थे, सत्यम सर लिखवाते थे, बट मैं नहीं लिखता था, राइट? बिकॉज बट अब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे लिखना चाहिए था. हमें लगता है कि बहुत और टाइम है, क्यों नहीं लिखता था कि भाई चलो टेस्ट सीरीज कर लो, इधर से कुछ पढ़ लिया, उधर से कुछ एनरिचमेंट मटेरियल मिल गया. There is nothing better than previous year questions for this exam. अगर आप previous year question ढंग से लिख के चले जाओगे, आप निकाल लोगे. इंटरव्यू कॉल आ रही है आपकी अगर आपने previous year questions लिखे हैं तो. So this is the idea. आप एक दिन लगाओ. आर्ट एंड कल्चर whatever prelims notes you have made, आप एक दिन लगाओ. वर्ल्ड हिस्ट्री श्रेयान सर के नोट्स आप एक दिन लगाओ. पोस्ट इंडिपेंडेंस आप एक दिन लगाओ. एंड वन डे यू कैन से दैट यू हैव सॉर्ट ऑफ रिजर्व. उस एक दिन में अगेन whatever is left एंड जो PYQs बचेंगे वो आप PYQs लिखो. हम PYQs आपको यहाँ दे देंगे, आप वो PYQs लिखना. Now, once these PYQs have been written, on Sunday, what we'll do is, we'll discuss some of the important ones. या तो किसी की कॉपी उठा के मैं डिस्कस कर दूंगा, या सत्यम से डिस्कस कर देंगे, ऋषभ से कर देंगे. We'll either pick up somebody's copy or we'll tell you how the actual answers were supposed to be written. इससे क्या होगा कि आप अपने आंसर उससे कंपेयर कर सकते हो. हम जल्दी डिस्कस करके या तो हम डायरेक्टली रिकॉर्डिंग ही अपलोड कर देंगे या वैसे कर देंगे. एवरीथिंग विल हैपन ऑन दिस ग्रुप. On this group, restricting the saving of content is restricted. आप ना फॉरवर्ड कर सकते हैं ना कॉपी कर सकते हैं, because we want to keep the sanctity here. तो इसीलिए there is a separate channel for all the resources. तो जैसे हिस्ट्री हो गया 5 दिन में, आपने एक दिन स्पेक्ट्रम पे लगाया, एक दिन आर्ट एंड कल्चर पे लगाया, एक दिन वर्ल्ड हिस्ट्री पे, एक दिन पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, एक दिन मान लीजिए आपके पास रिजर्व है, आपने रोज 8 PYQs लिखे. तो now you have written 40 questions of history, and on Sunday you go and we'll tell you, let's say, the 10-15 most important ones. हम आपको बता देंगे उनकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी थी, एंड यू विल बी डन फॉर हिस्ट्री. सिमिलर थिंग यू डू फॉर ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में उसके बाद एक्चुअली वील डू सोसाइटी. तो सोसाइटी में या तो आप मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, देयर ऑन द चैनल ऑलरेडी अपलोडेड है, जो दूसरा चैनल हमने बनाया है, या आप विजन का व्यायाम पढ़ लीजिए, वो आपकी मर्जी है. मेरे नोट्स कैसे पढ़ने हैं इसका मैं एक सेशन आपको अपलोड करके दे दूंगा. कहीं कहीं किसी को वर्ड समझ नहीं आएगा, मैं बता दूंगा मैंने कहाँ पे कौन सी शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया हुआ है. या फिर आप विजन का व्यायाम पढ़ लीजिए. तो ये तो देन ऑफ कोर्स दिस इज इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट, दिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. अगेन you read topic wise. Let's say the first day you're reading secularism and communalism, so we'll give you questions of secularism and communalism to write. Next day you're reading regionalism, so we'll give you questions of regionalism to write. 5 दिन में आप इसको खत्म करना and we'll be done. उसके बाद 5 दिन के बाद we'll have a session, सोसाइटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, खत्म. ज्योग्राफी में सेम थिंग.
योर प्रीलिम्स नोट्स फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एंड ओनली IAS का प्रहार फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी. अगेन वी विल डिस्कस, आपको क्वेश्चंस देंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे, विल बी सॉर्टेड. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू फिट इनटू दिस प्लान. तो अगर हम 21st को स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 2 3 4 5 इस दिन तक आपका हिस्ट्री डन है. फिर 1 2 3 4 5 इस दिन तक आपका सोसाइटी डन है. एंड देन लास्टली यहां तक आपका ज्योग्राफी डन है. यू माइट नोटिस दैट देयर आर नो ब्रेक्स हियर बिकॉज देयर आर नो ब्रेक्स फॉर यू नाउ. ओके, अगर आपको निकालना है ये एग्जाम तो देयर आर नो ब्रेक्स फॉर यू. आई अंडरस्टैंड कुछ दिन पढ़ाई नहीं होगी, बट यू हैव टू मेक अप फॉर इट ऑन द अदर डेज. अगर आप लगे रहोगे एंड यू कीप वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 90 days, एटलीस्ट एन इंटरव्यू कॉल इज वेटिंग फॉर यू. एटलीस्ट, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, आगे की बात तो चलो है ही, राइट. जब यहां पे हो जाएगा खत्म, लाइक लेट्स से व्हेन वी रीच हियर, देन वील गिव यू द सोर्सेज फॉर GS4. देन व्हेन वी रीच हियर, देन वील गिव यू द सोर्सेज फॉर GS2. ऐसा नहीं है कि वो सोर्सेज सॉर्टेड नहीं है, वो सोर्सेज बिल्कुल सॉर्टेड है. देयर इज नो डाउट in our minds what we have to give you, but because आप overwhelmed ना हो, like Satyam sir was saying, this is what we're going to do. अब resources आपको मिलेंगे कैसे? We'll give you a link of a separate telegram channel. उस telegram channel का नाम है SFG Mains 2023 Resources. ठीक है, मैं अभी उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसी ग्रुप में. उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारे रिसोर्सेज आपको वहां मिल जाएंगे. एक आधे वहां पे नहीं है, अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स वहां पे नहीं है, एंड एक दो और है, वो आज रात तक मैक्सिमम कल सुबह तक दे विल बी देयर. So this is your plan. And Wednesday को सुबह, like Wednesday morning, you will get your 8 PYQs of modern history. आप उस दिन रीड करिए. And how you are supposed to use this is when you write, लिखते लिखते आपको समझ आएगा कि पढ़ना भी कैसे होता है. It's not just a writing and reading exercise. When you write, you will understand कि इतनी information मे बी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मे बी यहाँ थोड़ा कम पढ़ लेता तो काम चल जाता, यहाँ थोड़ा ज्यादा पढ़ता, यहाँ ज्यादा पढ़ना पड़ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. So writing से you will align and orient your reading. This is the whole plan. ये प्रिंटेबल कैलेंडर भी मैं वहां पे भी डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए आप इसे प्रिंट करके अपनी डेस्क पे रख लीजिए. Again, 50% of your day is for optional, 50% is for GS, and we're trying to finish the first phase by 15th August. All right. Sir, anything else you'd like to share? Just इसमें like एक दो चीजें हैं. If you think that आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक ही दिन मिला है, ट्रस्ट मी, दिस इज फॉर योर बेनिफिट. मैं आपको एक हफ्ता भी दे दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. यू विल गो एंड हंट फॉर 2 सोर्सेज, क्योंकि लोग तो बहुत सारी चीज बोल जाएंगे कि ठीक है बिपिन चंद्र से एड ऑन कर लो, ये कर लो, वो कर लो. एट द एंड जस्ट रिमेंबर, एक चीज बहुत सिंपल सी याद रखो कि एक क्वेश्चन पे आपको 200 वर्ड्स आने चाहिए बस. दैट इज इट, नथिंग एल्स. द बेस्ट 200 वर्ड्स, बस दैट इज इट. तो उसके लिए अगर हम आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को देंगे, उसका फायदा क्या होगा? until and unless you know how to write it. प्लीज, बहुत एक्सपीरियंस से ये चीज बोल रहे हैं, इसको बहुत सीरियसली लेना. इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू रीड, इट इज अबाउट हाउ वेल यू राइट. Nobody is going to check कि भाई आप कैसा पढ़ रहे हो. And regarding breaks, I want to say like a very serious thing now is, आप तो भूल जाओ. like अब next 90 days it's just, किसी ने बहुत एक अच्छी लाइन लिखी थी, मेरे को बहुत पसंद आई वो. It's just head down, hand down. तो keep your head down into your books and keep your hand down onto your answer writing sheets. If you focus on this, you are sorted. अच्छा, also you do not have to write each and every PYQ. आपको कौन से PYQ लिखने हैं वो भी बताया जाएगा. You just have to follow. आप बस अपना बेस्ट देके फॉलो करते रहिए, and we'll make sure that you are through. Okay, also इसमें एक चीज और है जो like optional के लिए बतानी है. We are arranging for sessions. Like good number of people are coming. तो already मतलब बात चल रही है, 4-5 ऑलरेडी सॉर्ट हो गए हैं. विल बी ब्रिंगिंग देम. उसका कोई आपको शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स अवेलेबिलिटी, बट आपको पहले से बता दिया जाएगा. तो जिसका भी सेशन है, एंड हम एक प्राइवेट सेशन भी रख देंगे, विल ट्राई इफ द पर्सन एग्रीज, ताकि आप उनसे बात कर सको अबाउट सम स्पेसिफिक डाउट्स दैट यू हैव. तो आपको एक सेशन मिलेगा इस चीज का, या इधर द पर्सन विल बी अ रैंकर और इंटरव्यू अपीयर्ड, और मे मतलब द बेसिक फंडामेंटल चीज ये है कि उसका गुड स्कोर होगा. ठीक है, रैंकर हो, इंटरव्यू अपीयर्ड हो, सिर्फ मेंस लिखा हो, उस पर्टिकुलर ऑप्शन में बहुत शानदार स्कोर होगा. जैसे फॉर मैथ्स आई विल बी ब्रिंगिंग समबडी जिसका 300 मार्क्स का स्कोर है. ठीक है, एंड ही डजंट हैव अ रैंक, एंड इट्स ओके बिकॉज वो मैथ्स का चैंपियन है, राइट. तो उसको पता है मैथ्स में कैसे स्कोर करना है. तो विल बी ब्रिंगिंग दैट पर्सन ऑन बोर्ड. और आप जस्ट लाइक सिट एंड विल ऑल्सो ट्राई एंड अरेंज अ प्राइवेट सेशन, ताकि आप लोग उस पर डायरेक्टली पूछ सको कि भाई क्या लाइक आपके इश्यूज हैं, क्या भी आपको इश्यू लग रहा है, तो वो भी हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे.
ओके नाउ एसएफजी का नॉर्मली ये सीन होता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप बाहर कर दिए जाते हो। अभी वो करना है कि नहीं करना है, विल डिस्कसिंग इट विद शिविन, या फिर जो लोग कर रहे हैं उनको स्पेशल कुछ ना कुछ तो विल ट्राई एंड कम अप विद समथिंग। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट यार, अगर हम हार्ड वर्क डाल रहे हैं तो विल एक्सपेक्ट यू, भाई ये तो आपके करियर की बात है ना यार। मतलब अगर हम आपके करियर के लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आप अपने करियर के लिए तो हार्ड वर्क कर ही सकते हो। हाँ, इन एनी सेंस इफ योर लैक ऑफ हार्ड वर्क विल नॉट बी पेनलाइज्ड, एटलीस्ट योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड, ये तो पक्की बात है। मतलब और कुछ नहीं तो हम बोल देंगे कि ऑप्शनल में सिर्फ उन्हीं लोगों को सेशंस को अलाउ, उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे जो बाकी चीज फॉलो कर रहे हैं। बस डन है, बात खत्म हो गया, ये एक पर्क हो गया, जस्ट लाइक पुटिंग इट आउट। ठीक है ना, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल एंड विल डू इट। जो लोगों को ये लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, दे डू नॉट नो कि होता कैसे है, तो ये होगा। ओके ये सच में होगा। हाँ, मेंटरशिप सेशंस बिल्कुल, विल बी टेकिंग अप मेंटरशिप सेशंस, विल बी टेकिंग अप आंसर राइटिंग सेशंस, हम किसी में भी आपको डिसअलाउ कर देंगे। राइट, विल मेक अ सेपरेट ग्रुप ऑफ लाइक टॉप 10% पीपल हु आर परफॉर्मिंग। जो भी 400 लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 300 लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विल मेक अ सेपरेट ग्रुप, उनको वहां पे लिंक डाल देंगे, आप रहिए इस ग्रुप में। सो इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू आर गोइंग टू बी हर्ट, ये सिंपल सी बात है। तो बिकॉज इट इज फॉर योर करियर है, हम क्या मतलब इसमें, लाइक वी आर नॉट द कल्प्रिट्स हियर। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एट योर बेस्ट व्हेन यू आर डूइंग दिस, इतनी सी बात है। या दैट्स इट फॉर लाइक फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ लाइक इफ यू हैव सम डाउट्स और समथिंग you can raise your hands, but we'll take only very limited doubts because अभी doubts ऐसे आएंगे जो over a course of period, over the course of lane sort out अपने आप होते चले जाएंगे। तो इसलिए we'll just take limited doubts for now। या फिर ऐसा करें, चैट ओपन कर चीज दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ जैसे प्लीज। मान लीजिए आप इनमें से कोई आगे हैं, मतलब नॉट एवरीबडी वुड बी स्टार्टिंग देयर GS1 हियर ना, कई लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा, तो वी विल गिव यू GS4 रिसोर्सेज हियर, ओके, ताकि आप आगे हैं तो यू शिफ्ट योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। इफ यू आर अहेड इन द प्रेप यू शिफ्ट योर शेड्यूल अहेड, because not everybody would have waited till now to start, and whoever is smart was already preparing, right? And मुझे पता है for a fact that people are already preparing, तो ठीक है, but you are not late yet, but अब if you now don't start now you will get late। तो एक सर ऐसे ही करते हैं कि चैट ऑन कर देते हैं for some time, हाँ हाँ and sure। with the 1 hour timer आप चैट ऑन कर दीजिए, whatever valid questions we'll see we'll respond। ओके तो ये like, resource एक आर के link हिसाब यहाँ से ऑन कर रहे हैं तो you'll just be able to send one message, तो प्लीज यूज इट जुडिशियसली। आप एक मैसेज भेज पाओगे अभी, प्लीज यूज इट जुडिशियसली एंड आस्क अ डिसेंट इनफ क्वेश्चन वापस से, क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं बोल रहा हूँ आपको अभी लग रहा है वो, थोड़ी देर प्लान फॉलो कर लो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, कभी नहीं करी है, ऐसे ऐसे का जैसे हमने इसमें जिक्र नहीं किया, ऐसे को आपको डेज दिए जाएंगे, ऐसे के आपके सेशंस होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, बट ओके या यू कैन गो फॉर द डाउट्स। ओके रिकॉर्डेड वीडियो, ओके हाँ रिकॉर्डेड राइट वीडियो स्मार्ट मिल वाला जाएगी। मैं आपको कल बताता हूँ। आई टेल यू राइट स्मार्ट वाले जितने भी लोग हैं, आई टेल यू हाउ टू मैनेज दिस ऑन वेडनेसडे। ठीक है, यहाँ पे फोमो नहीं क्रिएट करते, ठीक है। और क्या है, GS4 का मटेरियल ठीक है, विल सी इफ वी वांट, लाइक इफ विल बी एबल टू शेयर इट विल डू दैट। रीडिंग के साथ क्या GS4 शॉर्ट नोट्स बनाए। हाँ मतलब यू कैन डू दिस, लाइक अभी जब आप रीड कर रहे हो तो यू कैन पिक अप, वही ना, जब PYQs की थीम्स आप देखोगे तो आप देखोगे कि देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जिससे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आपको ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको याद नहीं रहने वाले हैं। जैसे सपोज करो देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल से अपॉन, मे बी अपॉन द गांधीयन फेज के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा कि कैसे अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मर्जिन किया। तो उसमें जस्ट रिमेंबर टू राइट डाउन और नोट डाउन समवेयर कि आपको कौन कौन से सेक्शंस याद आ रहे हैं। ठीक है, कि लाइक फार्मर्स में से किसको किया, दलित्स में से कैसे किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आई, कौन से मूवमेंट्स में वो ऐड ऑन हुए। तो वो बहुत छोटे 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 पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए। अगर वुमेन ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न इंडिया में, तो अगेन जस्ट स्पेसिफिक स्पेसिफिक डेटास, बस उतना, लाइक उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बहुत छोटे नोट, जैसे कि हम बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, एक दिन में पूरा GS रिवाइज हो जाना चाहिए। राइट, तो वो कैसे होगा अगर आप बहुत लंबे नोट्स बना दोगे, तो कैसे होगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सपोज करो 20 कीवर्ड्स लिख ले रहे हो, उतने कीवर्ड्स के बाद आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा, 20 कीवर्ड्स आर मोर देन इनफ। तो प्लीज डोंट स्टार्ट मेकिंग बहुत बड़ी चीजें, ठीक है, जस्ट छोटे 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 कीवर्ड्स। जो बाकी क्वेश्चंस आए हैं, लेट मी से जो जो मुझे दिख रहे हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो डेली रूटीन वाला क्वेश्चन मैं अभी एड्रेस करता हूँ। ऑप्शनल में आई विल टेक अ सेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी वेरी सून।
एंथ्रोपोलॉजी का मैं आपको बता दूंगा जो मैं बता सकता हूँ, एंड फॉर पेपर 2 आई गेट समबडी. पेपर 1 में मेरे 152 हैं, सो आई टेल यू एवरीथिंग आई कैन फॉर पेपर 1, एंड पेपर 1 का मैंने काफी कुछ बता दिया है, राइट. अब देखो, कोई कह रहा है इफ यू स्टार्टेड विद एथिक्स. देखो, इफ यू स्टार्टेड विद एथिक्स, अगर आप स्विच कर सकते हो टू GS1 तो आप कर लो, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज दैट you will be able to follow the schedule here. तो जब आपके पास एथिक्स आएगा you'll always have a way ahead, right? GS4 की पूरी स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग सत्यम सर एंड ऋषभ सर विल टेक. ऋषभ सर इज हियर, उनके 135 हैं इस साल के एथिक्स के पेपर में. ही इज द नेशनल टॉपर ऑफ एथिक्स एंड ही इज इन दिस ग्रुप, ही इज इन दिस वीडियो चैट ऑल्सो. डोंट वरी, एथिक्स के लिए वी हैव समथिंग सॉर्टेड. ठीक है. टेस्ट सीरीज का आई लेट सत्यम सर टेक दिस क्वेश्चन कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं, बट एक डेली रूटीन वाला क्वेश्चन में एक बार बता देता हूँ. मेरे हिसाब से आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए. देखो, पेपर होता है मेंस का ऐसे, सर कर देते हैं चैट बंद. आई थिंक वी हैव इनफ क्वेश्चंस. All right. Yeah. So 9 to 12 is your first paper. ठीक है. बीच में आपको 12 to 2 आपको लंच भी करना है, थोड़ा खुद को रिलैक्स करना है. 2 to 5 is your second paper. This is how the mains is held. ठीक है. बट यहाँ खत्म नहीं होता मेंस. जब आप योर वर्स्ट डे ऑफ मेंस विल बी सैटरडे. पता है क्यों? क्योंकि अगले दिन आपको GS3 GS4 भी देना होगा और आप ये करके आओगे. तो यहाँ पे क्या होता है, आप 6-7 बजे तक, मे बी 6 बजे तक खुद को, 7 बजे तक खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हो. देन यू हैव टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट ईयर्स GS पेपर. तो अब मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे अगेन रिलैक्स योरसेल्फ फॉर 1.5 आवर, देन गो अगेन फॉर अ 3 आवर सेशन फ्रॉम मे बी 6:30 to 9:30. एंड जो भी कोर्स वीडियोस वगैरह अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट यू डू आफ्टर दिस. सो यू हैव डिनर and then you do this 10:30 to final session, maybe till 12:30 or 1. ये आपका 4th सेशन है, राइट. अब आप ऑप्शनल और GS में कौन सा फिट करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट. बट दिस 4 सेशंस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड. बीच में आप ब्रेक लो और आप 3-3 घंटे ही बैठो, बिकॉज यू नीड अ 3 आवर लेवल का वो, कि आप 3 घंटे बैठ के पढ़ सको. 3 घंटे बैठ के पढ़ने का मतलब है कि आप 3 घंटे आपकी अटेंशन इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव, राइट. ये चीज ऐसे अपने आप नहीं होगी, उस दिन नहीं होगी, राइट. ओके. नाउ जो राइट स्मार्ट और GS3 के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल GS3 की क्लास है, परसों राइट स्मार्ट है, वो वहां एड्रेस करेंगे. यहाँ इसको रहने देते हैं बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो उन कोर्सेज में नहीं है. अब हाँ सत्यम सर, अब टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए प्लीज. ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन था कि सर आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन टेस्ट सीरीज, शुड आई कीप राइटिंग वन एवरी वीकेंड. तो देखो, एनरोल कर लिया है तो अब तो लिखना ही है, तो ट्राई कि फिट कर लो इस प्लान में एंड जस्ट राइट इट. बट मैं अभी से बोल रहा हूँ, डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम द इवैल्यूएशन दैट यू विल गेट. ठीक है, वो कुछ नहीं होगा. इट विल नॉट हेल्प यू इंक्रीज वन मार्क, इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी केस. ठीक है, बहुत जल्दी विल एड्रेस दिस एज वेल कि क्या होता है, बट खैर विल कीप दैट फॉर सम अदर टाइम. तो लेकिन एनरोल कर लिया तो अब तो ठीक है, पैसे चले गए तो लिखना है तो उसे लिख लो जस्ट टू सी. लेकिन जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो बोल रहा हूँ, डोंट नीड टू. ठीक है, यू डोंट नीड टू एनरोल. बिल्कुल भी एनरोल करने की जरूरत नहीं है. मार्केट में टेस्ट मिल जाते हैं, PDFs मिल जाती हैं. अगर आपको लिखना ही है अभी के लिए, तो अगर PYQs के अलावा कुछ और लिख रहे हो, अगर PYQ सारे लिख लिए हैं, ठीक है, तब तो फिर ठीक है, लाइक यू कैन थिंक अबाउट राइटिंग समथिंग एल्स. बट PYQ से पहले अगर यू वांट टू राइट टेस्ट सीरीज, देन यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव. डोंट डू दैट, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, राइट. तो करना क्या है, करना ये है कि अभी के लिए PYQs लिखो, लिखना सीखो, देखो कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं. देन सेकंड फेज में हम खुद ही लिखवा देंगे टेस्ट, और उनके मॉडल आंसर से तब तक आप इतने ज्यादा एबल हो जाओगे कि आप उन इवैल्यूएटर से बेटर इवैल्यूएट करोगे. वो कैसे करना है वो भी बता देंगे. तो मेरी हम्बल ओपिनियन में यू डोंट नीड अ टेस्ट सीरीज. अगर किसी को ये है ही कि नहीं भाई फोमो क्रिएट हो रहा है और डालनी है पैसे, तो ठीक है, दैट्स अप टू यू. आई विल नॉट रिकमेंड एनी बिकॉज नन इज गुड. यू कैन बाय, यू कैन राइट, यू कैन सी द मॉडल आंसर्स जो आपको, इट्स ओके, इट्स लाइक इट्स अप टू कंप्लीटली अप टू यू. बट मेरी लाइक पर्सनल ओपिनियन यही है, डोंट गो फॉर इट. आपको खूब सारे PDFs मिल जाएंगे अभी, लाइक सब आने लगेंगे, सब आ जाएंगे. गेट दोज PDFs, गेट दोज मॉडल आंसर्स एंड विल बी सॉर्टेड. बाकी तो कुछ चाहिए ही नहीं. हाँ, जैसे कि शिविन ने लिखा भी है, टाइम मैनेजमेंट इज लाइक समथिंग. भाई आपको ऐसे है कि मेरे को 7 क्वेश्चंस जो है वो 1 घंटे में लिखने हैं, तो वो भी अपन लोग करवाएंगे. वो भी अगस्त में हम कराएंगे. लाइक एज सुन एज यू एंटर द सेकंड फेज, विल हेल्प यू मेक योर स्पीड.
बीच में भी करा सकते हैं, विल टैकल टू ऑल ऑफ दोस्त, सब कुछ टैकल होगा, वो लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी आपको। ठीक है, हम में से कोई मोस्ट ऑफली ऋषभ भाई या समबडी विल टेक दो सेशंस एंड विल टीच यू हाउ टू राइट फास्ट। फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू डू नॉट नीड अ टेस्ट सीरीज। लेकिन सिर्फ ये कि भाई बाद में कल को अपने आपको ये नहीं बोलना है कि यार टेस्ट सीरीज ले लेता तो हो जाता है ना, ब्लेम टेस्ट सीरीज वाले पे मत डालो। इसलिए अगर आपको करना है तो कर लो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। एथिक्स वाला हो जाएगा। अभी जैसे ये वाली चीज है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेन से, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है भाई, प्री कैसे क्लियर हुआ है बिना हिस्ट्री पढ़े? मतलब बेसिक तो पढ़ा ही होगा ना यार, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, बेसिक्स तो पढ़े ही होंगे ना। लाइक ऐसे कैसे हो सकता है कि हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं आज तक? आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेंस के लिए कुछ बहुत अलग पढ़ना है, बट ऐसा है नहीं। और अगर नहीं पढ़ी है, प्री क्लियर हो गया है, लाइक हो गया चमत्कार, तो फिर अभी पढ़नी है, बिकॉज अभी लिखना है, लिखने के लिए कंटेंट चाहिए, तो पढ़नी पड़ेगी अभी। तो वो मैनेज करो, पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स, सिट फॉर एक्स्ट्रा लॉन्ग पीरियड्स। मीन्स लिखने का मौका मिला है, स्लिप नहीं करने देना है। तो अगर स्पेक्ट्रम नहीं छुई आज तक, लाइक आई एम बीइंग वेरी हाइपोथेटिकल यार, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री का कोई सोर्स टच ही नहीं किया मैंने आज तक, तो मुझे क्या करना है? जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल आपके पास रिसोर्स हो सके, कोई 50 पेजेस की स्पेक्ट्रम की समरी मिल गई, रट मारो, लिखो फिर बैठ के आंसर्स। क्योंकि अभी 800 पेज जो स्पेक्ट्रम पढ़ना, लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन तो नहीं है कि ऐसा करना चाहिए इफ यू हैव नॉट रेड इट। हाँ, करंट अफेयर्स तो ठीक है, विल टैकल इट। उस पे हम कुछ प्लान भी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, लाइक लेट्स कीप इट फॉर नाउ। शिवन, यू वांट टू लाइक से समथिंग फॉर करंट अफेयर्स? मैं थोड़ा सा उस पे लाइक आई टॉक अबाउट इट इन द लेटर फेज। इसलिए हम GS1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि GS1 में यू डोंट हैव टू लाइक रीड अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, एंड देन GS4 में आल्सो डोंट नीड टू रीड अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसलिए हम GS2 GS3 थोड़ा पीछे रख रहे हैं, ताकि आपको करंट अफेयर्स को थोड़ा सॉर्ट करके दे सकें। इसीलिए थोड़ा देखो सा जो लाइक GS। हाँ हाँ यू विल नीड करंट अफेयर्स वो मेनली यही है ना। तो पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो, दिस इज वेर यू नीड करंट अफेयर्स, राइट। एंड ये हमारा, दीज आर द लास्ट 2 सब्जेक्ट्स वी आर डूइंग, करेक्ट। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये नहीं कह रहा आपको करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे, बट वी विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू इन सच अ मैनर कि आप एक जगह से कर लो। या तो हम आपको मेंस फिजिक्स से बता देंगे, उसका इंडेक्स हाईलाइट करके दे देंगे। मेंस का करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स नहीं होता। यहाँ पे वन लाइनर और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। यू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो ब्रॉड थीम्स पे आएगा, राइट। अच्छा, न्यूज़पेपर, भाई देखो, जितने लोग मुझे जानते हैं, ये क्वेश्चन काफी लोगों का था, मैं तो कहूंगा रहने दो। अगर टाइम है अपने ब्रेक्स में एडिटोरियल पढ़ने का तो कर लेना, बट दिस यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस यार। ऑप्शनल देखो ना अपना, यू हैव टू स्कोर इन। मैं भी ये कहूंगा कि नहीं नहीं पढ़ना है। लाइक आई ऑल्सो लाइक हैव अ +1 टू दैट। नहीं जरूरत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, बिकॉज एनी हाउ अगर आप एडिटोरियल भी पढ़ते हो, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल एनीथिंग अनटिल अनलेस यू राइट इट डाउन, एंड यू डू नॉट हैव टाइम टू राइट इट डाउन, तो डोंट। राइट। एंड कोई भी एक GS4 के मटेरियल की काफी डिमांड आ रही है कि कई लोग GS1 कर चुके हैं, तो ये हम अभी आपको 1 या 2 दिन में दे देते हैं। ठीक है, बट अभी सारे रिसोर्सेज देने का द ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज कि आप बहुत ओवरवेलम हो जाएंगे, और फिर यहाँ से ये वहां से वो, रहने दो, टाइम आएगा, विल डू इट। अगर आपका कोई और प्लान चल रहा था, लेट्स से यू हैव सम अदर प्लान, यू वर फॉलोइंग सम अदर प्लान एक्सेट्रा, तो देखो आप जब भी इस प्लान में सिंक हो सको हो जाओ। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस प्लान में सिंक हो जाओ, बिकॉज यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड द पीयर इफेक्ट। करेक्ट। अगर आप देखोगे ना कि लोग रोज ऑप्शनल, देखो, लर्निंग इज नॉट ओनली फ्रॉम योर सेल्फ। जब कल या 21st को जब 8 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, एंड मान लो यहाँ पे 200 लोगों ने भी लिख दिया, तो यू हैव 200 अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, राइट। आप खुद देख के बता सकते हो कि इसका आंसर मेरे से बेटर है या नहीं, और आपसे बेटर वो कोई जज नहीं करेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस इन दिस प्रोसेस आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू सी पीपल हैंडलिंग इट, तो आप कर लोगे। एंड ऑप्शनल की जहां तक बात है, एंथ्रोपोलॉजी का सेशन मैं कल या परसों में ले लूंगा कि आपको अब क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर पोजीशन इज। एंड अगेन, ऑप्शनल का सेशन रादर आई विल वेट टिल मे बी संडे। जो एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं, मुझे दिखाओ आप 5 दिन PYQs लिख के, एंड वट एवर सेशंस विल डू, विल ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। बट आप 2-3 दिन स्टार्ट करिए। अभी जितने मैसेजेस यहाँ पे हैं, आई वॉन्ट कि एटलीस्ट इससे डबल आंसर कॉपीज होनी चाहिए यहाँ पे, जब हम, बिकॉज यहाँ पे डाउट पूछना या ये कहना कि सर वर्किंग, अब देखो, एक ये भी क्वेश्चन आंसर, सत्यम सर आई डोंट नो द आंसर टू दिस। समबडी इज आस्किंग कि वर्किंग प्रोफेशनल का 4 आवर्स के आसपास ही टाइम मिलता है, तो क्या किया जाए। देखो यार, अगर आप मेरे से पूछोगे, आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आप
मेंस देने वाले लोग हो, आपके साथ कोई बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, शुगर कोटिंग की जरूरत नहीं है। इसमें तो देखो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि अगर आपके साथ वाले लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उनसे कैसे compete कर लोगे, राइट? आई फील दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, right? And you need some way or the other to manage it. Satyam sir, if you have any opinion on this, because I यार honestly don't. देखो, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं हु हैव बीन वर्किंग प्रोफेशनल्स, उन्होंने तो ब्रेक लिया है यार। लाइक जितने मुझे याद है, दे हैव टेकन अ ब्रेक एटलीस्ट इन दीज 3 मंथ्स। तो अगर आप विदाउट पे भी जा सकते हो, इफ यू कैन अफोर्ड इट, ऑब्वियसली आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीबडी, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड इफ यू कैन मैनेज इट, गो फॉर अ ब्रेक। अगर वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, देन चीज ये है कि आपको ना बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा। और आई डोंट नो हाउ टू लाइक से इट, बट मतलब ऐसे करना पड़ेगा आपको कि आप अपना ऑप्शनल एक हफ्ता बहुत, मतलब ऐसे 5 दिन में जम के पढ़ रहे हो, देन जो वीकेंड आपको मिलेगा उसमें आप जीएस बहुत जम के पढ़ रहे हो, तो 5 दिन ऑप्शनल, फिर 2 दिन जीएस, 5 दिन ऑप्शनल, 2 दिन जीएस, ऐसा कुछ करके यू विल हैव टू मैनेज। टफ है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज, यू विल हैव टू डू इट। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाओगे। अगर नहीं ले सकते हो, लीव और करना ही है साथ में, लाइक इफ दैट इज लाइक इम्पॉसिबल फॉर यू कि भाई नहीं छोड़ सकता मैं जॉब, अभी नहीं ले सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, देन आई एम सेइंग दिस, यू विल हैव टू मैनेज इट इन दिस वे कि ऑप्शनल पढ़ो 5 दिन, जितना टाइम मिले ऑप्शनल 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 ऑप्शनल। क्योंकि जीएस में स्टिल एक डिसेंट स्कोर तक जाया जा सकता है इफ यू नो अ सर्टेन बेसिक थिंग्स विच यू विल बी टोल्ड। बट ऑप्शनल में नहीं है, ऑप्शनल में सीधा 100 नंबर का गैप आ जाएगा, कुछ भी कर लेना, भरेगा नहीं। तो ऑप्शनल पे बहुत ज्यादा फोकस करना फॉर नाउ। जीएस को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या करना है, विल टॉक अबाउट इट। ऐसे सेशंस, हाँ ऐसे सेशंस अभी शुरू हो जाएंगे, विल इन्फॉर्म अबाउट यू, विल इन्फॉर्म लाइक उनके बारे में, विल राइट पीवाईक्यूज, हम आपको देंगे पीवाईक्यूज लिखने के लिए ऐसे के, एंड विल डिस्कस देम, इधर मैं, ऋषभ भाई या शिवन, कोई भी हम बैठ के डिस्कस करेंगे इससे आपके साथ, डोंट वरी अबाउट दैट। GS4 के सेशंस भी यार, लाइक एज व्हेन वी स्टार्ट GS4 विल स्टार्ट द सेशन, सबसे पहले तो क्या मीनिंग है सेशन स्टार्ट करने का। हाँ, रिकॉर्डिंग वो सब मिल जाएगी आपको, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बट अगेन बेटर तो यही है ना यार, अगर हम एक घंटा पहले एक दिन पहले बता के, अगर हम 9 बजे आ सकते हैं विद ऑल आर कमिटमेंट्स सिटिंग, हम तीनों आपके सामने बैठे हैं, तो आप भी इतना तो मैनेज कर ही सकते हो यार। इस टाइम तो किसी के ऑफिस भी नहीं होते, इतना It तो आप भी has मैनेज कर taken ही सकते हो। it has taken 2 hours to come up with this plan. जब एंड आपको पता ही है, सत्यम सर इज राइटिंग मीम्स, मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, लबासना का भी मुझे एक कोर्स करना है, यूट्यूब भी चलाना है हम दोनों को। सो विद ऑल ऑफ दैट, इफ वी आर फाइंडिंग टाइम फॉर यू, देन यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू फाइंड टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस। वही मैं कह रहा हूँ, यू थैंक अस विद आवर हार्ड वर्क, आप जितना करोगे हम उससे डबल करके दिखाएंगे आपको। मतलब मोटिवेशन भी वहीं से आती है ना यार। विल एसेज बी इवैल्यूएटेड? आई डोंट थिंक सो। लाइक बाद में हम सोच सकते हैं इवैल्यूएशन वगैरह का, इफ वी गेट इनफ पीपल ऑन बोर्ड हु आर विलिंग टू डू इट, बट एल्स इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ यार, इट इज ऑल अबाउट, आई एम नॉट कमिटिंग इट, मैं पहले बोल रहा हूँ, आई एम नॉट कमिटिंग इट, बट इट इज ऑल अबाउट द पर्क्स। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू शो दैट यू आर डेडिकेटेड, मे बी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हमें टाइम मिलता है तो विल गो थ्रू समथिंग और विल मैनेज समथिंग, विल फाइंड आउट टाइम फॉर समथिंग। कमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इवैल्यूएशन, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन, क्योंकि मुझे कभी किसी इवैल्यूएटर से आज तक रत्ती भर सीखने को नहीं मिला है जितना खुद से मिला है। खुद से, और मान लो ऋषभ भाई से अपने पेपर चेक करा लिए, ऋषभ भाई ने 4 बातें बता दी उससे, बस दैट इज इट। तो आपस में करके और खुद से करके, बस दैट इज इट। एंड ऑफ कोर्स ऋषभ भाई वुड एग्री टू दैट कि उनके पेपर्स से सिर्फ उन्हें तभी सीखने को मिला है जब उन्होंने या तो खुद से किया है या फिर मेरे से कराया। दैट इज इट, यही होता है, यही हकीकत है। तो अभी डोंट थिंक अबाउट कि आप हमारे पेपर वैल्यूएट करा दोगे क्या, यही कर दोगे क्या। इफ यू, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वो फोमो है ही कि नहीं कोई बस रेड पेन मार के दे दे, तो कर लो टेस्ट सीरीज ज्वाइन, इट्स कंप्लीटली ओके, आपको मिल जाएंगे यार पेपर इवैल्यूएट होकर, दैट इज नॉट अ बिग डील। उनके लिए क्या है, उनके लिए तो कमिटमेंट है, 2 दिन में उनको देने हैं, चाहे 1000 पेपर दे दो उनको, तो यूल गेट दैट, आपको वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाएगी, दैट्स ओके, ज्वाइन इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो रिग्रेट भी नहीं रहना चाहिए कि यार उस बंदे ने बोल दिया था, उसके कहने की वजह से ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मेरा मीन्स नहीं निकला। आई डोंट वांट टू लाइक कीप दैट ब्लेम ऑन माई सेल्फ। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं वैल्यूएशन की वाकई में नीड है, ज्वाइन इट, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। बट हम अभी के लिए इवैल्यूएशन नहीं दे पाएंगे, दिस इज लाइक कीपिंग इट वेरी ऑनेस्टली। हम आपको बता देंगे हर क्वेश्चन, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम आपको बता देंगे कि देखो इसमें आपने ये गलती करी होगी, देखो इसमें आपको ये ठीक करना था, देखो नोट करो कि ये किया है कि नहीं किया है, वो सब कुछ विल टॉक अबाउट, पक्का। I एंड think दैट वुड बी लोगों को मोर देन ये भी इनफ। परसेप्शन है कि जो वो कोचिंग में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां उनका कोई बहुत प्रोफेशनल इवैल्यूएशन होने वाला है। एक हाँ एक तो इसलिए टिक मारना इज नॉट इवैल्यूएशन भाई। टिक मारने का वो मतलब विल इवैल्यूएशन। विल मेक अ वीडियो जो पेंडिंग है, तो उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छी वैल्यूएशन हो रही है तो, और मे आप बी। लोगों को तो बता सकते हैं दैट वीडियो हैज माय कॉपीज, एंड उसमें हाँ हाँ हाँ
इवेल्युएटेड। क्या हुआ है, इवेल्युएटेड कॉपीज दिखाऊंगा मैं आपको अपनी, आपको पता चलेगा क्या हो रखा है उसमें। अच्छा सॉरी सॉरी, विल कीप द सेशंस इन इंग्लिश। बीच बीच में स्विच हो जा रहा है, ओके। राइट, Best आई थिंक book for PYQs. I don't think there is any best book for PYQs. You are the best book. You are the best writer. Write your PYQs. Don't seek model answers, ideal answers, PYQs answers. ये कुछ नहीं होते. This is all waste of time. आप यार क्या करोगे दूसरे के आंसर देख के, जब तक खुद आंसर नहीं बनाने आ रहे हैं? करोगे क्या देख के दूसरे के आंसर्स? अप्रोच, यहाँ से अप्रोच सीखी जाती है कि कैसे अप्रोच क्या करना होता है क्वेश्चन को। दिस इज व्हाट यू लर्न हियर, राइट। मॉडल आंसर देख के हो भी क्या जाएगा, लाइक रटने थोड़ी आंसर हमें, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रिपीट होना है। यू नीड टू लर्न कि इस पीवाईक्यू को देख के कि अरे यार मैं कैसे सोचता हूँ और मैं कैसे आंसर जल्दी जल्दी लिख सकता हूँ। दिस इज वाई दे आर देयर। और जब आप लिखोगे आपको ये चीज समझ आना शुरू हो जाएगी, एंड मोस्ट ऑफ थ्रू आवर सेशंस। लास्टली की क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि GS4 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, लाइक हाउ डू वी शिफ्ट? इट्स ओके इफ यू डोंट नॉट एबल टू शिफ्ट, इट्स ओके, कर लो GS4। अगर आपने शुरू किया तो इसका मतलब है कि आपको आता है कि कैसे करना है, तो कर लो, डू GS4, लाइक फिनिश इट एज सून एज यू कैन, मैं यही कह सकता हूँ। अगर थोड़ा GS1 के साथ पैरेलली चला सकते हो तो पैरेलली चला लो, क्योंकि मतलब यार यही आंसर्स है ना इन चीजों के। अब ऑब्वियसली विल नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बट अगर आप ये चीज कर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, ग्रुप के लिए भी, सबके लिए, हमारे लिए भी। अगर आप अपनी GS1 और GS4 को पैरेलली चला लोगे तो बस इतनी सी बात है। नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही लाइक कास्ट इन स्टोन हो गया है, तो फिर ठीक है, लाइक गो विद GS4, कंप्लीट इट एज सून एज यू कैन एंड देन कम टू GS1, ऐसे कर लो। देख यही बोल सकते हैं यार अभी तो। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ दिखा है कि प्रथा प्रथा नहीं, या मिंच, आई डोंट नो व्हाट योर रियल नेम इज, मनीष होगा मे बी। मिंच इज सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी फील्स दैट दे आर बिहाइंड। देखो मैं भाई नहीं। आपको, हाँ अभी बोलो नहीं, बोलो। अभी नहीं हो आज, बट इफ यू फक अप टुमारो यू विल बी बिहाइंड। यू फक अप ऑन 21st यू विल गेट बिहाइंड। ठीक है, अभी नहीं हो आप, बट यू कैन नॉट, मतलब अब नहीं, देयर इज नो स्कोप फॉर मेसिंग अप नाउ। नाउ यू हैव टू बी एग्जैक्टली अलाइंड विद ये जो प्लान आपके साथ बात हुई है। नाउ दिस हैज टू वर्क एवरी डे, दिस हैज टू वर्क एवरी टाइम, दिस हैज टू वर्क। अब टाइम है, आपको दिखा दिया ये प्लान, आप ये फॉलो कर लो, हो जाएगा। बट अब नहीं, लाइक यू कैन नॉट मेक मोर एरर्स नाउ। दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड जिसने GS1 वगैरह कंप्लीट कर लिया है आपको मिल जाएगा। मेन C65 कैसे रीड करना होता है, क्या होता है, वील टेल यू, डोंट वरी अबाउट हाँ इट। वो हो जाएगी बात, ठीक है। इस बारे में और लाइक जस्ट एक सिंपल सा एडिशन है मेरा, लाइक पीपल हु आर फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, पीपल हु आर फीलिंग कि यार पहला मेंस है, पीपल आर फीलिंग कि यार नहीं प्रीलिम्स हो गया है, पूरा नहीं पढ़ा था, अभी क्या करना है। एक बहुत सिंपल सी बात याद रखना, लोग 8-8 9-9 मेंस दे देते हैं और तब भी इंटरव्यू कॉल नहीं आती है। तो इट इज नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट, इट इज अबाउट हाउ वेल यू हैव स्पेंट इट। प्लीज लोगों के मतलब फिर तो यही होना चाहिए ना, जिसका 8वां अटेम्प्ट है वही हर बार रैंक 1 लेके आएगा, बट होता है क्या वो? नहीं होता है ना। कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ दिस। ज्यादातर उन लोगों की टॉप रैंक्स आती है जिनका पहला मेंस है, क्योंकि दे हैव दैट फायर कि भाई लग जाना है। तो वो फायर को लाइक रखो अपने पास। ये इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं पीछे छूट रहा हूँ और बहुत, अगर खुद पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो फिर बैटल अपने आप ही वो पीछे होते चले जाओगे। आई एम टेलिंग यू, सिंपल सा पूछो ना अपने आप से, क्यों ऐसा है कि 8वां 9वां जो मेंस लिख रहा है इंसान उसके रैंक 1 नहीं आ रही है, इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि एक अप्रोच सेट कर लिया उस बंदे ने, वो उस अप्रोच को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? दैट यू आर रेडी टू चेंज योर अप्रोच, यू आर रेडी टू बिल्ड एन एंटायर न्यू अप्रोच। यू डू नॉट हैव एन अप्रोच, दैट इज द बेस्ट, यू आर क्लीन स्टेट और टेबुलर आसा। तो जो बता रहे हैं उसको करते जाओ एंड यू विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है। सेइंग लेक्सिकॉन फॉर GS4, अरे भाई जस्ट वेट फॉर वन डे। हाँ रुक बट जाओ, ये नहीं, लाइक रिकॉर्डिंग पे मत बुलवाओ चीजें, रुक जाओ। वैसे भी बता देंगे पूरा एथिक्स का यार। ठीक है, आई गेस डन है क्या? कर सकते हैं खत्म। अभी आई थिंक 1-2 दिन जब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, थिंग्स विल बिकम मैं मोर वही कह रहा क्लियर। हूँ ना कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट इट विल गेट सॉर्टेड वंस यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। स्टार्टिंग में एकदम जब आप खड़े होते हो ना, आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस क्या ही हो रहा है, बट वंस यू स्टार्ट मूविंग थ्रू, और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग तो आएगी नहीं, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो सेल्फ बिलीफ रखना है, सेल्फ बिलीफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग सेटिस्फाइड।
जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव कि भाई हम यहाँ पे छापने के लिए नहीं बैठे हैं, जेन्युइनली कुछ काम करने के लिए बैठे हैं। तो वो थोड़ा उस चीज के बेसिस पे ट्रस्ट कर लेना और फॉलो कर लेना चीजों को, एंड आई गेस विल बी सॉर्टेड। ठीक है भाई, लेट्स करें खत्म। लाइक हम आपको कल का दिन दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू द एंटायर 28th of June। जॉइन द चैनल, सी द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज बचे हैं विल सेंड द कैलेंडर, विल सेंड द प्लान, विल गिव यू कि कौन से पीवाईक्यूज कब लिखने हैं, सब बता दिया जाएगा। ठीक है, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, डू थिंग्स, और हमें भी मैनेज करने दो यार। मतलब अभी शिविन जस्ट टॉक्ड अबाउट कि हमें 2 घंटे लगे प्लान बनाने में, बट हमें कितना टाइम लग गया ये ग्रुप बनाने में। ठीक है, तो प्लीज लाइक थोड़ा सा लाइक, है ना, take those things into consideration when you think of giving up on yourself. Ultimately it's just two people, right? Ultimately तो हम 2 ही लोग हैं ना, तो like we will help you as much as we can, but we have to see that reciprocation from you, and I think sir ठीक है, we can end here। लोगों को समझ आ जाएगा। 21st को in the morning you'll see 8 questions of previous year। यहाँ पे जो pinned message होगा आपको सिर्फ वही पढ़ना है, everything will be pinned। ठीक है, जो पिन मैसेज है आपको वही पढ़ना है। उसके अलावा अगर मान लो कोई बकर चल भी रही है ग्रुप पे, कभी चैट ऑन है, कुछ है, यू विल नॉट नीड टू रीड इट, ओनली द पिन मैसेज यू विल नीड टू रीड। नहीं, चैट्स भी बहुत कम टाइम ऑन रखेंगे यार, बहुत कम टाइम ऑन रखेंगे चैट्स भी, जैसे लाइक स्पेसिफिक जब डाउट्स कुछ होंगे तब चैट ऑन करेंगे, क्योंकि इट्स टाइम टू स्टडी। हेड डाउन, हैंड डाउन, जस्ट राइट इट डाउन। अच्छा, मैंने ना दिस जब मतलब जो एक दूसरा लाइक मेरा जो पुराने वाला एसएफजी है, मैंने ना उस पर एक बहुत छोटी सी बात की थी कि एक ना जस्ट राइट दिस डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस विल really help you. Just write this line down. The biggest regret for me will be clearing such a prelims exam and not giving my everything for mains, everything in bold and capital. The biggest regret for me will be clearing such a prelims exam and not giving my everything for mains. Just like write this thing down, keep it in front of you. This will push you to your boundaries. क्योंकि यार ऐसा prelims फिर पता नहीं like कब क्या हो जाए, तो अभी चांस मिल गया है तो भाई हिट इट आउट ऑफ द पार्क, हिट इट आउट ऑफ द पार्क, दैट इज इट। ये लिख लो, ये मतलब चिपका के रख लो, फोन का वॉलपेपर बना लो, सब कुछ बना लो, है ना। मिल्खा सिंह में उसने बोला था ना, जिंदगी की लास्ट रेस साबित हो सकती है, तो दौड़ना भी वैसे ही है। दैट इज इट, लेट्स वाइंड इट अप। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोग, आई नो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो गया होगा कई लोगों के लिए, बट डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू। इट्स ओके, यस यस यस, डोंट वरी, आपके साथ है मेंस तक। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। सी यू ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, यू विल गेट योर क्वेश्चंस बाय 9 AM on Wednesday. हाँ, before that only. Thank you so much, Rishabh bhai, for being here, for being the support that you are. Thank you so much, everybody, for taking out time. We don't need to thank for this, but ठीक है, चलो, thank you so much, and let's catch up. Let's see you soon. Thank you, everybody. Please take care. Have a good night. Bye bye.